Couple of more minutes, then we'll start. Okay, so let us start. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So let's start. So in the previous class, we started this immunization and vaccination, and we discussed basic about what is immunity, what is inherited immunity, acquired immunity, what is vaccination. So we discussed about that, right? Immunization and vaccination. Yes, sir. Yeah. So I think we left off at what are antibodies. Sir, how WBC responds to the antiviruses or pathogens? Okay. So uh, here there is one very important fundamental point. The feature of the immune system. Whenever we are getting any infection for the first time, okay. So when there is the first infection, okay, yani some kind of foreign particle, okay, or microorganism, okay, just like some kind of bacteria, virus, or something like that has entered into the body. So what happens? The immune system, it will give a immune response. Okay, so what it will do basically, there are the WBC cells, okay, white blood cells. These white blood cells, they will start producing antibodies. Antibodies. Okay. So we discussed about what are antibodies, or did we not? Antibodies. Antibodies means they will be produced against this whatever the foreign particles are coming inside. Anti. So these antibodies are proteins. Okay, they are proteins. And how do they appear? You know that अंडा में भी प्रोटीन है, हेयर जो अपना बाल है, बाल में भी प्रोटीन है. Okay, it is there in the milk. Okay, protein is there so many different forms. Okay, उसका अलग अलग शेप होता है प्रोटीन का. तो एंटीबॉडी में जो है प्रोटीन का शेप वाई शेप में होता है. Okay, Y shape, this kind of shape. So what happens is whenever there is a certain bacteria or something, so these antibodies, they are very specific. Okay, they are very specific. What they will do, they will specifically only coat या cover this kind of bacteria or virus that is entering into the body. तो इस तरीके से जब उसको कवर कर देता है, तब दूसरे टाइप का WBC सेल, WBC में भी अलग अलग टाइप के होते हैं. एक एंटीबॉडी बनाता है, तो एक क्या करता है, आके इसको खा जाता है.
ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना, इसको वो समझ जाता है कि ये कुछ बाहरी चीज है, अब इसको हम खा जाते हैं, खा के इसको पूरा डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको क्लियर कर दिया जाता है। तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग you have to identify that it is a foreign substance. Okay, second thing is that antibody need to be made against that. तो ये सभी चीज जो है फर्स्ट इन्फेक्शन में चलता है। व्हाट अबाउट द सेकेंड टाइम इन्फेक्शन? उसी बैक्टीरिया या उसी वायरस से फिर दूसरी बार, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर से इन्फेक्शन हुआ, तो क्या वही समय लगेगा या कम समय में इसका खात्मा हो जाएगा? More time. Sir, it will take less time. Less time. Less time. So it Less time. less time. Why? Because the immune system, it has memory. इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इम्यून सिस्टम, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके पास मेमोरी है कि अगर हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल इसके पहले आया था और बॉडी ने एक इम्यून रिस्पॉन्स दिया, एंटीबॉडी बनाया, तो अगर पहले इन्फेक्शन में 30 दिन लग गए या 25 दिन लग गए, तो दूसरी बार तो 1 सप्ताह भी नहीं लगता है, 2 से 3 दिन के अंदर एकदम एंटीबॉडी तैयार। इससे फायदा क्या होता है? फायदा यह होता है कि इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने का समय नहीं मिलता है ना। अगर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करा शरीर के अंदर, वो वायरस आके बॉडी के अंदर मल्टीप्लाई करा, अपना पॉपुलेशन बढ़ा लिया, तब तो इन्फेक्शन सीरियस हो जाता है। तो इसके पहले कि इसकी नंबर बढ़ जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, हमारा बॉडी कम समय के अंदर एंटीबॉडी बना के उसे न्यूट्रलाइज कर देता है सेकेंड इन्फेक्शन में, या उसके बाद भी जब कोई इन्फेक्शन होता है तब। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द इम्यून सिस्टम, दैट इज इट हैज ए मेमोरी। नाउ इसी प्रॉपर्टी को यूज करके क्या बनाया जाता है? वैक्सीन बनाया जाता है। कैसे? कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कोई डेंजरस वायरस आपको पता है कि दुनिया में अब चल रहा है और आपके पास आपने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन इज नथिंग बट ए किल्ड प्रिपरेशन ऑफ Sir, killed form of that virus. हाँ, ऑफ दैट वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जो भी वो पार्टिकल है, जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एमओएस में शॉर्ट फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख रहा हूं। सो द किल्ड प्रिपरेशन ऑफ दैट वन, ओके, it is not necessary that it has to be killed always, okay, it can be live also sometimes, लेकिन वो लाइव तो रहेगा लेकिन वो डिसीज नहीं कर पाएगा, उसका इस टाइप का स्ट्रेन हम लोग बनाते हैं लैब में। तो जब उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है इंसान में, आपने उसका एक बनाया, इंजेक्शन बनाया और दे दिया एक हेल्दी पर्सन, ओके, फॉर एग्जांपल बेबी, ओके, बिकॉज बेबीज अंटिल द एज ऑफ 10 to 12 years उनका इम्यून सिस्टम बहुत डेवलप नहीं रहता है, उनको कई सारे इन्फेक्शंस का हमेशा होते रहता है, तो ज्यादातर वैक्सीन उसी समय में दिए जाते हैं। ठीक है, तो किल्ड प्रिपरेशन जो है उसको आपने दे दिया, इसके कारण क्या हुआ कि जो बेबी का जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। ठीक है, और ये एंटीबॉडी उसके शरीर में जो बना वो एज ए मेमोरी रह जाता है, ओके, इट रिमेन्स एज ए मेमोरी। तब इसके लाइफ टाइम में जब भी ओरिजिनल रियल इन्फेक्शन होगा, तब क्या होगा? दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, क्योंकि उसके पास इम्यून मेमोरी ऑलरेडी बना हुआ है, बहुत जल्दी से एंटीबॉडी बना के उस जो भी डेडली टाइप ऑफ बैक्टीरिया या वायरस है उसको वो न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ओके, so you now are able to understand that what is the concept of the vaccine? Any Yes, doubt sir. you have? Excuse me, sir. हाँ,
Sir, there are some types of cell. I have just studied somewhere that K cell and B cell. Sir, what are that? Okay, I think that is going a bit outside our syllabus. Okay, so Sir, maybe will you explain? I think we will be really going out of. देखिए चीज क्या है ना, आप गहराई में कितना भी जाइए, है ना, डिटेल में कितना भी जाइए, लेकिन आपका मेन फोकस है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। और ये जो Yes, sir. एनके सेल्स है, आपने बताया एनके सेल्स, राइट? Yes, sir. हाँ, नेचुरल किलर सेल्स। ओके, दिस आर नेचुरल किलर सेल्स, जो कि उसको खा जाता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स, है ना। देखिए ये सब शब्द आपके लिए आवश्यक नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। तो पहले क्या Okay, sir. हुआ, एंटीबॉडी बना, कॉम्प्लेक्स बनाया, दूसरे टाइप के जो एनके सेल्स आके उसको खा जाते हैं। तो आपके लिए वो सब शब्दों का फेर अभी जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ बस। ये वैक्सीन क्यों काम करता है, कैसे काम करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, एनी डाउट्स यू हैव फर्दर? वैक्सीन वाले Sir, can you please explain this form again? विच वन? Sir, vaccine are only given to children only, not to adults. वैक्सीन कैन ऑल्सो बी गिवन टू अडल्ट। ओके, क्योंकि देखिए आप इसमें देख लो, वैक्सीन का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, सिंपल क्या है, किल्ड प्रिपरेशन है, आपको दे दिया जो है, एक इंडिविजुअल को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि वो एंटीबॉडी बनाए, ठीक है, उसको इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि वो तो किल्ड है। लेकिन क्या हो गया, उसके बॉडी में उसका मेमोरी बन गया, तो असली में जब इन्फेक्शन होगा तो वो उस इन्फेक्शन को आसानी से कम समय के अंदर रिकवर कर लेगा। ओके, एंटीबॉडी जल्दी बना लेगा। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो बेबीज को या कम एज में शुरू किया जाता है क्योंकि उनका ज्यादा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, उनको पहले से प्रिपेयर कर देते हैं। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप बड़े लोगों को नहीं देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, अभी जो भाई 18 साल के ऊपर हो गए उनको तो वैक्सीन तो नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी है सबको वैक्सीन पड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनी अदर डाउट्स? Okay, so shall we move further? Sir, हाँ, sir, as we know that you said that vaccine is a killed preparation, yeah. then why it is tested in every generations, like it is tested on children's also. If it does not have any effect, means if it does not do any harm to us, then why it is always tested on animals also, it is tested. देखिए ये जो टेस्टिंग होता है उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, एक होता है क्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। ओके, क्वालिटी कंट्रोल पहला स्टेप होता है, क्वालिटी कंट्रोल। जब भी कोई इस टाइप का प्रिपरेशन बनाते हैं लेबोरेटरी में, क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं कि भैया आप तो सोच रहे हैं कि मैं वायरस बना रहा हूं, पता चला उसके साथ कुछ और भी बन रहा है। तो प्यूरिटी क्या है उसमें, आप जब किसी के शरीर में कुछ दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं कि आप दे रहे हैं वही है और उसको छोड़ के कुछ और नहीं है। तो उसको बोलते हैं पहला क्वालिटी कंट्रोल, पहला वो होता है। उसके बाद क्या होता है, एनिमल ट्रायल, या एनिमल ट्रायल के पहले भी 2-3 होते हैं, लेबोरेटरी में उसको अपन करते हैं, उसको सेल ट्रायल्स बोलते हैं। तो एनिमल ट्रायल होता है जब यहाँ पे सब अप्रूवल हो जाता है, लैब का क्यूसी अप्रूवल हो गया, तब एनिमल ट्रायल में गया। एनिमल ट्रायल में क्या होता है, उसका जो एफिशिएंसी है, ओके, एफिशिएंसी कि मतलब सही में क्या ये कुछ काम कर पा रहा है, कि आपने तो सोचा कि ये मतलब इस इन्फेक्शन से बचाएगा, लेकिन क्या सही में ये बचा पा रहा है? अगर बचा पा रहा है तो कितना परसेंटेज इसका एफिशिएंसी है, ठीक है। अभी ऑलरेडी आपको 1-2 दिन पहले न्यूज में आ गया कोरोना वायरस का कि 1-2 कंपनीज हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि मोर देन 95% हमारा एफिशिएंसी है, मॉडर्ना कंपनी यूएसए। तो व्हाट डज इट मीन? दैट मीन्स 5% लोग जो कि इस वैक्सीन को लेंगे उनको इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, ठीक। चलिए फायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान भी तो नहीं होना चाहिए, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वैक्सीन बनाने में कई सारे अलग अलग स्टेप होते हैं जिनको जब तक सर्टिफिकेशन और क्लैरिटी नहीं आ जाता है
तब तक वो जो है मार्केट में रिलीज नहीं किया जा सकता है। तब तक वो एनिमल ट्रायल से ह्यूमन ट्रायल तक तो पहुंचने में ही उसको 5 साल से ऊपर लग जाता है। ओके, अभी क्योंकि ये एक सीरियस केस है तो इसमें कई सारे गवर्नमेंट्स पर्सनली इंटरवीन करके इसको स्पीड अप कराते हैं। चलिए, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? ओके, so these vaccines, they are produced against what? They are produced against the antigens। तो हमने एंटीबॉडी देखा। ओके, एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज नथिंग बट एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल या सब्सटेंस। ओके, यानी आप अगर बॉडी में कोई भी चीज इंजेक्ट कर दें, क्या उसका एंटीबॉडी बन जाएगा? क्या अगर मैं सलाइन, ओके, पानी सलाइन लेके किसी को इंजेक्ट करते हैं, क्या उसके बॉडी में पानी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा क्या? नो सर। नो सर। नहीं बनेगा। तो भाई, नो सर। हाँ, तो हर चीज का एंटीबॉडी नहीं बनता है। तो जिस चीज का एंटीबॉडी बनेगा, जिस भी चीज का एंटीबॉडी बनेगा उसको हम लोग एंटीजन बोलेंगे, और जो चीज का एंटीबॉडी नहीं बनता है वो एंटीजन नहीं होता है। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का अस्तित्व एक दूसरे से है। अगर एंटीबॉडी है, एंटीजन के कारण है, और अगर एंटीजन है वो इसीलिए है क्योंकि उसका एंटीबॉडी बन रहा है। ओके, सो एंटीजन के विषय में आपको कोई डाउट? समझ गए आप क्या एंटीजन है? एंटीजन का मतलब हो गया एंटीबॉडी जनरेटिंग, GEN, एंटीजन, एंटीबॉडी जनरेटिंग मटेरियल। ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक क्या बोलते हैं, HIV का वायरस है। ठीक है, HIV का वायरस है। HIV का वायरस किसी को इंजेक्शन में चला गया, होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ना, खून का ट्रांसफ्यूजन होता है, लोगों की खून की कमी होती है तो उस समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है, वो खून कंटामिनेटेड होता है। आजकल तो बहुत चेकिंग होता है, आजकल नहीं होता है उतना समस्या, पहले बहुत ज्यादा होता था। तो कंटामिनेटेड खून है, उसके पर्सन के शरीर में चला गया, तो उस HIV के अगेंस्ट में उस पेशेंट का एंटीबॉडी बना। ठीक, तो हम उस HIV को एक एंटीजन मानेंगे या नहीं मानेंगे? यस सर, वी विल कंसीडर। We will consider। यस सर। सेकंड केस क्या हो गया? दूसरा केस में क्या हुआ कि एक दूसरे आदमी को जो है HIV का कंटेमिनेटेड ब्लड जो है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन में चला गया, लेकिन उसके बॉडी में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना, एंटीबॉडी बना ही नहीं। तो क्या हम उस HIV को एक एंटीजन बोल सकते हैं? नो सर। सीधा कहानी है इसमें। जितना भी आदमी इसमें कहानी ट्विस्ट कुछ भी कर दे, आपको बस एक ही चीज से मतलब है कि एंटीबॉडी बना या नहीं बना। अगर एंटीबॉडी बना तो वो एक एंटीजन है। ठीक, चलिए, तो it is 9:06, our time is still 9:15। okay, we have some time। so this is about the vaccines and all। so we will now move on to the next topic, important topic, that is the habit forming substances। ठीक, हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ जिससे कि आदमी को उसकी आदत लग जाए। आदत लगने वाली चीजें। सबसे आदत तो खराब लगती है चॉकलेट की, मिठाई की, स्वीट्स की। तो क्या हम स्वीट्स को हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस मान सकते हैं? यस सर। यस सर। Okay. So there are the हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस में 2-3 क्राइटेरिया हम लोग लेते हैं। ओके, वन इज इट्स एबिलिटी टू बी एडिक्टिव।
एडिक्टिव यानी बार बार लेने की जो मन करता है, उसको बार बार कंज्यूम करने का मन करता है, एडिक्टिव उसको बोलते हैं। एंड देन दैट इट शुड रिजल्ट इन एडवर्स साइड इफेक्ट्स, एडवर्स साइड इफेक्ट्स यानी उल्टा सीधा इसका कारोबार होगा लेने के बाद, हेल्थ खराब होगा, मेंटल हेल्थ भी खराब हो सकता है। सो when you consider sugar, for example, or in the case like chocolates or whatever sweets and so on, it is addictive to a certain range, it is true, it is having adverse side effects। तो ये जो adverse side effects है, इसका डेफिनेशन एक सोशल चीज है। ओके, ये साइंस नहीं है, ये सोशल है। ओके, यानी आपका जो समाज है, वो समाज इसको समझ के लेता है कि भाई क्या हम इसे खराब माने या नहीं माने। ठीक, तो चीनी शरीर में खराबी करेगी, लेकिन आप बहुत ज्यादा जब कंज्यूम करते हैं खराबी करेगी, लेकिन हर एक चीज की जो एक मान्यता है कि यहां तक ठीक है, माना गया ऐसा। हर एक सोसाइटी का एक सोशल एक्सेप्टेंस है। ओके, तो यहां पे इन चीजों को उतना खराब नहीं माना गया। ओके, स्वीट्स को उतना खराब नहीं माना जाता है, अच्छे ही माना जाता है बहुत हद तक। ठीक है, लेकिन some of these things are considered very bad। Okay, they are also having adverse side effects, real adverse side effects। So what are the examples of that one? Are number one, alcohol। Okay, alcohol is, we are referring to basically ethanol। Okay, और कई बार आप सुनोगे कि अल्कोहल पीने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कैसे हो गई? क्योंकि उन्होंने अल्कोहल में मिथेनॉल पी लिया। ओके, मिथेनॉल, ये C2 कंपाउंड है, ये C1 एक कार्बन, ये 2 कार्बन का है। तो ये जो है बहुत जहरीला है, मिथेनॉल। तो जो 2 नंबर तरीके से अल्कोहल डिस्टिलेशन करते हैं, कई बार क्या होता है कि मिथेनॉल इसमें मिल जाता है, और जब मिथेनॉल का चीज नहीं निकाला जाए और उसको कंज्यूम किया जाए, तो सर्टेन डेथ, आंखों की रोशनी की खत्म हो जाना, ये सब टाइप की प्रॉब्लम आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द habit forming part of alcohol। So alcohol, it is resulting in the addiction, and then what will happen when it result in the addiction? It will result in the damage to the liver, that is known as the liver cirrhosis। Okay, liver cirrhosis, what is this liver cirrhosis? तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं और लिवर आपने जो भी खाया है, तो उसको जब फ्राई करते हैं लोग, ओके, सो ओरिजिनल द लिवर विल लुक ए बिट रेडिश एंड ऑल। उसको फ्राई करने के बाद उसके ऊपर आप देखोगे थोड़े से, मतलब एक तो कलर चेंज हो जाता है और ऐसे बुलबुले टाइप का, या क्या मतलब सब बॉइल्स बॉइल्स टाइप का हो जाता है, एकदम उसी तरीके का लिवर हो जाता है लिवर सिरोसिस में। मतलब लिवर फ्राई हो गया आदमी का, उसके शरीर के अंदर ही वो लिवर फ्राई हो गया, किसी काम का नहीं रहा। तो लिवर जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक सेंटर ऑफ द बॉडी। अगर लिवर ठीक नहीं है, वो खाना नहीं पचा सकता है, खाना नहीं खा पाता है, उसका हेल्थ पूरा डाउन होके सर्टेन डेथ, नो डाउट अबाउट दैट। Okay, liver cirrhosis is a very serious disease। Okay, so this is one of the most serious side effects of the consumption of the alcohol। Okay, the next one is the tobacco। Tobacco, you know very well, is from the plant, tobacco plant। tobacco plant का जो लीफ होता है, उस लीफ में एक पर्टिकुलर निकोटीन। हाँ, एक प्लांट एल्कोलॉइड सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं निकोटीन। It's alkaloid। So most of the plant alkaloids are very dangerous। Okay, they will play with the nervous system। Okay, तो वो जब नर्वस सिस्टम के साथ खेल करता है प्लांट का एल्कोलॉइड, उसमें जो है लोगों को रिक्रिएशन लगता है। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, इट
it results in the habit forming kind of behavior. So when a person feel very good, okay, and then he feels so dangerously bad, and when he feels so dangerously bad, which is known as the withdrawal symptom, the person can go to very dangerous extents of depression, mental disorders, health problems and so on. Okay. तो टोबैको फॉर एग्जांपल इसमें दो टाइप का है, एक है ओरल कंजम्पशन और एक है स्मोकिंग. Oral consumption of tobacco. North India, it is more common. So when people are consuming the tobacco in a oral form, it can result in various health problems. छोटे छोटे problems तो हो गए digestive type के, acidity बढ़ जाता है, नहीं मिलता है तो don't feel well and all those things. लेकिन the more serious kind of thing is the oral cancer. Oral cancer is a very real problem. The cancer hospitals are filled with people. आधा जबड़ा उनका सर्जरी के द्वारा निकाल दिया गया, जी काट के निकाल दिया गया, थ्रोट का पूरा सर्जरी करके निकाल दिया गया. इट इज ए वेरी डेंजरस डिसीज, वेरी वेरी खराब बीमारी. इसका कोई इलाज नहीं है. कोई कितना भी दावा कर ले, हम लोग इस पे ऑलरेडी काम करके देख चुके हैं. तो ओरल कैंसर का सबसे बड़ा जो है दुश्मन, नेवर कंज्यूम दिस थिंग्स. नेक्स्ट, स्मोकिंग. Smoking is taking it in the form of the smoke. The smoke contains a tar. Okay, this tar is nothing but it is having a little bit greasy, oily kind of. Okay, smoke में ही थोड़ा सा हल्का ग्रीजी ऑयली टाइप का रहता है. जैसे कि जब रोड बनाते हैं तो रोड बनाते समय काला वाला जो डांबर उसमें डाल के उसको सेट करते हैं, उस टाइप का चीज tar. What happens is in the lungs, okay, so in the lungs what is going to happen, there are the alveoli or air sac. This alveoli air sac के ऊपर ये पूरा ये जो ग्रीजी और ऑयली टाइप का स्मोक है, ये उसके ऊपर कोटिंग हो जाता है, जिसके कारण जो गैस एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाना है, कार्बन, ये जो एफिशिएंसी है इसकी कम हो जाती है. आदमी cannot be healthy. Okay, he is susceptible to the various diseases. इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा. ओके, इसको जो है निमोनिया की प्रॉब्लम, क्या बोलते हैं, जो है लंग के रिलेटेड कई डिसऑर्डर्स, ऑल दिस थिंग्स, एंड एक्सट्रीम केसेस से लीड टू द लंग कैंसर. ओके, कैंसर सुनते ही सबको पता है कि भैया अल्टीमेट है, इसके बाद तो शायद ही कोई बचने का तरीका रहे. बैंक बैलेंस खाली करना है और कुछ नहीं है. पहले पैसा बर्बाद करो इस पे, उसके बाद पैसा बर्बाद करो ठीक होने के ऊपर. दोनों तरीके से जो है कंपनी पैसा कमाएगी. तो बेस्ट थिंग इज, these are very dangerous substances, but they are available in the market. That is a social problem, one has to be careful. Alcohol, tobacco. In our next class we will cover the drugs as well. What are the problems with the habit forming substances like drugs? Any doubts you have? Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yeah, please. Sir, all these habits forming substances are due to release of dopamine. It is not necessary that is due to dopamine only. Okay, क्योंकि देखिए न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग अलग टाइप के हैं, और ये जो हर इस हम लोग देखेंगे इसके बाद कोकेन, हीरोइन इज देयर, हाउ दिस अल्कोहल वर्क्स, इट इज वर्किंग मोर ऑन द हाइपोथैलेमिक रीजियन. तो सबका निकोटिन का निकोटिनिक रिसेप्टर्स होता है नर्वस सिस्टम के ऊपर. तो हर एक इस का अलग एक्शन, मोड ऑफ एक्शन है नर्वस सिस्टम के ऊपर. ओके, सो देयर इज, वी कैन नॉट से जनरलाइज्ड कि इस तरीके से ये होगा. सबका अपना अलग अलग एक्शन है. Okay, sir. Okay, so any further doubts? So I have taken your attendance, so then I will see you all in the next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.